A very good morning, students. How are you all? I hope all of you will be fine, healthy, and happy at your home. Today, we are going to read the new lesson, that is the Mumbai Musicians, of your book Marigold 2. So, you can predict from these pictures who are the musicians here. Yes, the donkey, the dog, the cat. They are singing outside a house and you can see some people inside the house, है ना। आप इसमें कौन कौन देख रहे हैं? एक डोंकी है, एक डॉग है और एक कैट है और दे आर सिंगिंग, वो गाना गा रहे हैं। ओके, द मुंबई म्यूजिशियंस। सो म्यूजिशियंस कौन होते हैं? जो खुद का म्यूज़िक कंपोज करते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड म्यूजिशियंस। सो लेट्स enjoy and read this story. You will listen the story very carefully. You will listen the pronunciation of each and every word so that you can also read it correctly. Okay. Once upon a time, there lived a donkey named Gopu. He had worked for many years in the house of a farmer. So, once upon a time there lived a donkey. एक बार की बात है, there was a donkey and what was his name? Yes, his name was Gopu. And he was working for many years in a house of a farmer. The donkey, have you seen donkeys? Yes, you have seen donkeys in the washerman house. आप लोगों ने धोबी के घर पे देखा होगा। तो ये जो donkey है, he used to work at a farmer's house, in a farmer house. ये एक farmer के घर में काम करता था from many years, बहुत सालों से. He had carried many heavy sacks of corn and sugar cane from the farm to the factory. तो फार्म से मतलब खेतों से, फार्म जो खेत होते हैं, खेतों से फैक्ट्री तक उसने बहुत सारे सैक्स मतलब बोझे जो होते हैं, जो बोरे होते हैं ना, बोरे में भर के जो चीज़ें रखते थे, सैक्स. ओके, they are sacks. So what he do? He used to carry the heavy sacks, the heavy bundles of corn, मतलब वो जो मक्के होते हैं, द शुगर केन, गन्ने का, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्रीज. ओके, सो he carried the sacks of corn and sugar cane from farm and factory. He was now very tired and old. अब वो बहुत थक चुका था and बूढ़ा हो चुका था. Because he was old, so he become tired easily. वो बहुत जल्दी टायर हो जाता था, टायर्ड हो जाता था, थक जाता था. The farmer said to Gopu, "You are a good donkey. Take the sack of corn and go to see the world before you become too old." तो फार्मर ने क्या कहा उसको कि तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, अब तुम एकदम ज़्यादा थक जाओ और बहुत बूढ़े हो जाओ, इससे अच्छा है कि तुम उससे पहले ये कॉर्न की बोरी लो, इस मक्खी की बोरी लो और इसको लेके जाओ, बाहर की दुनिया देख के आओ. बाहर की दुनिया में जिस घर में वो रहता था उससे फार्म से फैक्ट्री तक जाता था, तो उसके बाहर भी एक दुनिया है. तो फार्मर चाहता था कि डोंकी उसको देखे. सो ही सेड दैट यू गो टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड दिस बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. ओके, Gopu smiled and said goodbye. Gopu was happy that his जो भी उसका वो था, लॉर्ड जो भी उसका मालिक था, द फार्मर, he said him to go to see the world. So Gopu was happy. He smiled and he said goodbye. He set off towards the city of Mumbai. So where he was going? He was going to Mumbai. So he said goodbye and he went. Set off means रवाना हो जाना, चले जाना. So set off means to went. So he went towards Mumbai. I am good at music. I will go to Mumbai and be a musician there. तो उसने बोला कि मैं म्यूज़िक में अच्छा हूँ, so I will go in Mumbai and I will become a musician there. On the way, he met a dog, and when he was going, he met a dog.
So here you can see the dog, and the dog was sitting on the back of the donkey. कहाँ बैठा है? डोंकी के पीठ पे बैठा है. ओके. So where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Asked Doppu. What was the name of dog? The name of the dog was Doppu, and the name was the donkey was Goppu. Yes. So what did Goppu replied? Goppu replied, I am going to Mumbai to be a musician. Would you like to come too? Asked Goppu. Goppu ने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ. I am going to Mumbai and I will go there and become a musician. Do you want to come with me? क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? Yes, I would, replied Doppu. What did Doppu reply? Doppu said, yes, I will also come with you. मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा. Off went the two friends on a busy road to Mumbai. दोनों एक साथ चले गए. कहाँ? रोड्स, जो बहुत बिजी रोड्स होते हैं, बहुत कंजस्टेड रोड्स होते हैं मुंबई के, उसकी तरफ. They saw a ball of fur in the middle of the road. Who are you? They asked. They saw a ball of fur. फर क्या होता है? जैसे तुमने देखा होगा ना, डॉग, उसके ऊपर बहुत से छोटे छोटे मुलायम मुलायम बाल होते हैं. They are called fur. Okay. तो उन्होंने रोड के बीच में दे सॉ अ बॉल ऑफ फर एंड दे आस्क्ड, हु आर यू? तुम कौन हो? दे आस्क्ड, आई एम फरी द कैट, सेड द कैट. सो हुम डिड दे मीट? दे मीट अ कैट. तो कैट का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैट? यस, द कैट नेम वाज फरी. Would you like to come with us and become a musician? उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो और एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो? Asked Goppu and Doppu together. गोपू और डोपू ने एक साथ पूछा. किससे पूछा? इस कैट से. And what was the name of the cat? She was furry. And what was the name of the dog? Dog was Doppu. And what was the name of the donkey? Yes, donkey name was Goppu. So, come on the next page. Oh, I would love to come along. डोपू ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे साथ आना पसंद करूंगी. So off went the three together to become Mumbai musicians. So तीनों एक साथ गए. तब क्या बनने? They want to become Mumbai musicians. Soon they met Cuckoo the cock. And on the way to Mumbai, they met a cock. His name was Cuckoo. So I love music and wish to join your band. बैंड में क्या होते हैं? बैंड में पूरे म्यूजिशियंस का अलग अलग ग्रुप होता है. तो कुकू कहती है कि आई ऑल्सो लव म्यूज़िक, मुझे भी म्यूज़िक बहुत पसंद है, एंड मैं तुम्हारे बैंड को ज्वाइन करना चाहती हूँ. तो दे ऑल रीच द हाउस विद द लाइट. दे वर टायर्ड एंड हंग्री. दे पीप्ड इन थ्रू अ विंडो. सो पीप्ड मतलब क्या होता है? झांकना. जब हम किसी छोटे से छेद या छोटी सी ओपनिंग से किसी के थ्रू देखते हैं, दे आर कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड पीप्ड. ओके. सो ऑल ऑफ देम रीच मुंबई एंड दे ऑल वर वेरी टायर्ड एंड हंग्री. वो पहुंच गए थे, बहुत थके हुए थे और भूखे थे. सो उन्होंने एक घर में पहुंचे. वहाँ देयर वाज लाइट एंड दे पीप्ड इनसाइड द हाउस थ्रू अ विंडो. एक विंडो के थ्रू देखा, और व्हाट दे सॉ टेबल विद डिलीशियस फूड. दे डिसाइडेड टू सिंग to let the people inside know that they were the musicians. Okay. So उन्होंने अंदर देखा कि there was a table and lot of delicious dish was there. उस टेबल पे बहुत सारे delicious dishes रखी हुई थी. And what they decided? They decided that we all of us will sing together so that people inside it will know that there are musicians outside our house. उसने बोला हम सब एक साथ गाते हैं तो जो अंदर के लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि बाहर म्यूजिशियंस आए हुए हैं. So what they did? They sang. उन्होंने गाया. And the people inside the house thought ghost मतलब क्या होता है? भूत. had come to scare them. Scare मतलब डराना. तो जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, the people inside them thought that ghost had came and now he is scaring us. उन्हें लगा कि जो घोस्ट है, भूत आ गया है, वो हमें डरा रहा है. They ran away as fast as they could. और वो बहुत तेजी से भागे घर. गोपू डप्पू फरी went into the house and ate the food till they
could eat no more till they could eat no more मतलब जब तक खाया जब तक उनका पेट अच्छे से नहीं भर गया। तो गए दोनों अंदर और उन्होंने अच्छे से उन लोगों ने खाना खाया जब तक उन लोगों का पेट ना भर गया। ओके, so this was the story. I hope all of you have enjoyed it. Okay, now what are the new words? First one is TIRED, tired. MUSICIAN, musician. PEEPED, pipped. DELICIOUS, delicious. GHOSTS, ghosts. SCARE, scare. आप लोग क्या करोगे? You will write the new words in cursive writing in your notebook. After that come word meaning. The first word is set off. Set off means went. कहीं के लिए चले जाना, जैसे I set off to Mumbai. I set off towards Mumbai. Musician, a person who composes music. जो म्यूजिक बनाता है, जो कंपोज करता है, सॉरी. फर, शॉर्ट सॉफ्ट फाइन हेयर ऑन द एनिमल बॉडी. जैसे दिस इज अ फरी एनिमल, मतलब जिसके फर पे, शरीर पे छोटे छोटे मुलायम बाल होते हैं. इट इज कॉल्ड फर. अदर इज मिडिल. मिडिल मीन्स इन द सेंटर. टुगेदर विद वन अनदर, मतलब साथ में. बैंड इज अ कंपनी ऑफ म्यूजिशियन. जब पूरे अलग अलग, तुमने देखा होगा बहुत सारे शोज़ में जब गाने बजते हैं, जैसे आपने यू मस्ट हैव सीन इन इंडियन आइडल, जब कोई गाता है देयर आर सर्टन म्यूजिशियंस विच प्ले म्यूजिक. बहुत से म्यूजिक पीछे बजाते हैं ना, दे आर बैंड. रीज्ड, काम निया, मतलब कहीं भी पहुंच जाना. पीप्ड मतलब लुक थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, झांकना. एंड देन डिलीशियस इज टेस्टी. ओके, एंड देन स्केयर मीन्स कॉजिंग फियर, किसी को डराना. You have to learn these word meanings and write it in your notebook. You have to write these question answers also. Why did the farmer tell Gopu to see the world? क्यों कहा? Can you tell me? Yes, very good. Because Gopu was becoming too old. Okay, so the farmer told Gopu to see the world because he had become old and could not carry load anywhere. क्योंकि अब बूढ़ा हो चुका था और लोड कैरी नहीं कर पा रहा था. Why did Gopu Dopu Furry want to go to Mumbai? Because they want to become musicians. So Gopu Dopu Furry wanted to go to Mumbai to become musicians. So you have to write the answer from the question only. गोपू से लेके यहाँ तक सिर्फ want में ed लगा देना. wanted, Gopu Dopu and Furry wanted to go to Mumbai to become musicians. Okay, next question is why did people in the house run away? क्यों भाग गए थे बताओ? Yes, very good. Because they thought that ghost had came to scare them. कि ghost आया है उन लोगों को डराने. Because they all thought that ghost had come to scare them. So you will also write this answer in your notebook, question answer, and learn it in your holiday. Now see, here you have to differentiate these words into small e, शॉर्ट ई. एक ये होता है शॉर्ट ई. शॉर्ट ई क्या होता है? जिसमें तुम्हें एक का साउंड होता है. जब सिंगल ई होता है किसी वर्ड में तो वो प्रोनाउंसिएट, उसका साउंड होता है ए. लेकिन जब लॉन्ग ई क्या होता है? जब डबल ई होता है. और डबल ई होता है उसमें ई ऐसा साउंड होता है ई. और सिंगल ई में क्या साउंड होता है? ए. ओके, तो जैसे कि सिंगल ई LEG, लेग, ये शॉर्ट ई हो गया. और एक सिंगल ई कहाँ है बताओ? BELL, बेल. देखो लेग, नेस्ट, बेल एंड वेल. और डबल ई लॉन्ग वाला कौन सा हो गया? देखो डीप, स्ट्रीट, ई आ रहा है ना, सीड, ट्री, मील. ओके, दीज आर लॉन्ग ई. ओके, मतलब ई लंबा आना चाहिए. जो ई और ए है उसमें भी ई लंबा आता है. तो ये लॉन्ग ई प्रोनाउंसिएशन में जब हम रीड करते हैं तब. और ये शॉर्ट ई. अब हम लॉन्ग आई और शॉर्ट आई पढ़ते हैं. शॉर्ट आई जो होता है उसमें एक ही आई होगा. दैट इज़ जो सिंगल साउंड करता है वो क्या साउंड करेगा? ई, छोटा सा ई. जैसे PIG, पिग, लिप, हिल, फिश. लेकिन जब आई के साथ LE आ रहा है, बाकी आई तो आई साउंड करेगा. स्माइल, लाइट, डाइस, लाइन,
तो ये आई जो है लॉन्ग आई में आई पूरा साउंड कर रहा है। तो ये वाले वर्ड तो आप लिखोगे ही, इसके साथ दो दो और वर्ड्स लिखोगे जिसमें हर एक इसमें जिसमें शॉर्ट ई और लॉन्ग ई और इसी तरह शॉर्ट आई और लॉन्ग आई आता होगा। जैसे इसमें मैं लिख सकती हूँ ना, क्या लिख सकती हूँ, लिड, LID लिड, और SIT सिट, है ना। और इसी तरह आइल में मैं क्या लिख सकती हूँ, PILE पाइल। ओके, तो इसी तरह आप भी लिखोगे। इसी तरह डीप में क्या लिख सकती हूँ, वीप, WEEP वीप। उसी तरह एग में क्या लिख सकते हो, बताओ, शेड, SHED शेड। ओके, तो ऐसे वर्ड आपको अपने आप भी ढूंढ के लिखने हैं। I hope you understand this. So let's come on the next page. See here, these are the composite words. इसमें दो small words को मिला के एक नया word बनाया है। News plus paper is newspaper. School plus bag is school bag. Toothpaste, toothpaste. Necklace, necklace. वो लेस जो नेक पे पहना जाता है, वो पेस्ट जो टूथ पे लगाया जाता है, वो बैग जो हम स्कूल के लिए कैरी करते हैं। Someone, someone. वो रूम जहाँ पे नहाया जाता है, इट इज़ बाथरूम। टाइम टेबल, फुटबॉल, वो बॉल जो फुट से खेला जाता है। देन कारपेट, कारपेट जो हम नीचे भी जाते हैं। तो कारपेट मतलब ये नहीं है कि मैंने ऐसे बोला कि इसका और इसका कोई मीनिंग अलग है, नो। कारपेट मतलब यू कैन ब्रेक दिस वर्ड इनटू टू अदर वर्ड। जैसे अगर इफ़ आई विल राइट कारपेट, CARPET कारपेट, देयर आर टू वर्ड्स, carpet, two word is there, CAR and PET. car means you know, pet means the two meaningful word, दो meaningful word इससे बन रहे हैं, ठीक है। so carpet is a composite word. this is in your book and this will also you will do in your book only. okay, now here also category of instruments. ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना। कुछ हम हाथ से बजाते हैं, कुछ हम वायस से बजाते हैं, कुछ हम फूंक मार के अपने मुंह माउथ से बजाते हैं, ठीक है। कुछ में स्ट्रिंग्स होती हैं, कुछ में हम फिंगर्स को यूज़ करते हैं, कुछ में हम ब्लो करते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड किया गया है। वन दैट वी प्ले विद द फिंगर्स, वन दैट हैव स्ट्रिंग्स, जिसमें वायर्स होती हैं, तारे होती हैं, और एक जिसको हम फूंक करके बजाते हैं। अब देखो फिंगर्स से क्या क्या बजाते हैं, ये तबला बजाते हैं, डफली बजाते हैं और ढोलक बजाते हैं ना। ये तीनों हम अपने फिंगर से बजाते हैं। किस किस में वायर्स होती हैं, सितार में होती है, गिटार में होती है, वायलिन में होती है, इकतारा में होती है। और किस किस चीज़ को हम फूंक मार के बजाते हैं, शहनाई को एंड फ्लूट को, मतलब बांसुरी को। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक जिसको हम फिंगर से बजाते हैं, जिनको स्ट्रिंग से होती है, और जिनको हम ब्लो करके बजाते हैं। दिस ऑल्सो यू विल राइट इन योर book only, but you have to identify it because in test I will give. Now next come on this page. This you will do in your book only. ये भी आप book में ही करोगे। Now this answer you will write at your own. ये अपने आप लिखना है। Do you play any musical instrument? Yes. आगे लिख देना I play। जो ड्रम बजाता है वो ड्रम लिख देना, जो बांसुरी बजाता है वो बांसुरी लिख देना। ओके, यस आई प्ले डैश, जो भी आप लोग ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो वो। इफ़ नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न, और अगर आप नहीं बजाते हो तो यू विल सिंपली राइट व्हाट, नो आई डोंट प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यू विल राइट हियर। ओके, अगर नहीं बजाते तो कौन सा बजाना चाहते हो तो लिखो आई वुड, यहाँ पे लिखोगे लाइक, आई वुड लाइक टू प्ले, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाना चाहते हो। आई वुड लाइक टू प्ले डैश, डैश में आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखोगे जो भी आप बजाना चाहते हो। और नहीं बजाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, नो आई डोंट play any musical instrument. Okay, now here the second word, add the word of the opposite gender in the given sentence. mother का opposite क्या होता है, you will write here father. uncle का
जेंडर आंट, लायन का, किंग का, मैन का, ग्रैंडफादर का। दिस यू विल डू एट योर ओन। ये आपका HW है, ये अपने आप करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सारा काम कॉपी में कर लेना, कंप्लीट योर वर्क, रीड दिस, लर्न दिस, ओके, इन योर हॉलीडे, एंड हैप्पी हॉलीडे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।